in this training, basically we are going to cover the F5 DNS. iRule is same. Whether you talk about them in LTM or in DNS, it has the same concept. तो वो मैं यहीं पे cover कराऊंगा आपको. Make sense? Okay, sir. हाँ. तो मैंने बताया आपको कि बिग आईपी जीटीएम में, बिकॉज पहले रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, वी वर नॉट रिकॉर्डिंग दी सेशन, राइट? तो एट दैट टाइम आई सेड दैट डीएनएस इज a module of the F5, one of the additional module apart from LTM, because we already covered the LTM, so we know that what is the meaning of LTM module. So in similar way, we have a F5 DNS module, and the objective of the F5 DNS module would be to resolve your names into an IP addresses. That's the major role of the DNS. Now in backend, obviously it can perform load balancing, it can perform monitoring, it can perform, like, it has so many different features. But after all, the objective of the F5 DNS, because it works as a DNS server. Listen me carefully, that it is a DNS server. Seriously, I'm telling you that it is a DNS server. The F5 DNS module is going to work as a DNS server. And you know that what is the role of the DNS server in the internet world. So mainly, obviously, DNS is responsible to translate your names into an IP addresses, because nowadays we are accessing internet using names only, like whether you are accessing facebook.com, google.com, whatever, even www.imedita.com, whatever websites you are trying to access nowadays, you access them using their names. But in backend, every application server or every application has got an IP address in backend. Now, we don't remember their IP addresses and we don't want to. So then what is the, how come then you can access those applications? So that's the reason that we have got the DNS. So DNS helps us to resolve names into an IP address. So for example, if I have got one, let's say, let me open up one tab here. So I'll open one tab, and let's say if I am trying to access, for example, imedita.com. So I am trying to access that application using its name, correct? Since I'm accessing iMedita application using its name, so obviously in backend something should happen, right? Something should be working to translate this name into an IP address. Do you agree, Vishal, or not? Vishal, do you agree with this statement कि backend में ये name जो है वो IP address में translate होना चाहिए? Srinivas, do you all agree? Yes. So that is the work done by the DNS. तो अभी अगर मैं यहाँ पे, if I take the packet captures on my machine, let's say, अभी ले नहीं रहा हूं मैं वो, but if I take the packet captures on my machine using Wireshark, then we can see कि जो 3-way हैंडशेक हुआ होगा imedita.com एप्लीकेशन सर्वर के साथ, उससे पहले DNS प्रोसेस परफॉर्म हुआ होगा. सबसे पहले डीएनएस हिट हुआ होगा. अब इसमें दो चीजें हैं, एक इसके लोकल कैश में भी हो सकती है एंट्री कभी कभी मशीन के. अगर वो लोकल कैश में एंट्री है इसके, तो फिर इन दैट कंडीशन योर मशीन वुड नॉट रिक्वायर टू जनरेट द डीएनएस रिक्वेस्ट अगेन फॉर दिस नेम. But if there is no entry in its cache, obviously then it will have to send this DNS request for the DNS server. And that's the reason that you always have to allocate the DNS server IP address onto your machine. So for example, if you have got a laptop or desktop, तो आपने देखा होगा कि आप ये IP एड्रेस एलोकेट करते हो, एंड IP के साथ साथ आप क्या एलोकेट करते हैं? DNS सर्वर्स. अभी ठीक है, if I keep my DNS server address automatically, like if I obtain DNS server IP address automatically, so I'll get the service provider DNS server. But since I wanted to use the open DNSs like the Google DNS and then the Amazon DNS, so that's the reason that I have put the DNS server IP addresses manually here. That's the only reason. There is, do not think anything else. Do not think in other way. Okay, but at the end, your machine must have a DNS server IP address configured. Correct? So what happens is that when you try to access anything with its name, so first it sends a DNS request to the DNS server, to the configured DNS server. So what if you do not configure the DNS server? Obviously, you would not be able to access anything, because then your machine doesn't know that who the DNS server is. And if your machine doesn't have any information that who the DNS server is, then how come your machine would send out the DNS request asking for an IP address against the name that you are trying to access? करेक्ट? मतलब जो भी आप नेम को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, उसका आईपी एड्रेस कैसे निकाल पाएगी आपकी मशीन अगर यहाँ पे डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है? तो ये जो बेसिकली डीएनएस सर्वर वाला टास्क है ना, वो आपका F5 GTM, या जिसको अब आप क्या कहते हो, F5 DNS, राइट?
पहले हम इसको जीटीएम बोलते थे, दैट वाज ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर, बट अभी 2 साल से, आई बिलीव 2 years बिफोर, F5 रीनेम्ड जीटीएम टू डीएनएस, बस रीनेम किया, बाकी फीचर लिस्ट तो वैसे ही है, ठीक है, वो आपके वर्जन चेंज होते रहते हैं, कुछ बग फिक्सेस होते हैं, कुछ नए कुछ एक दो न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट जो जीटीएम था वही डीएनएस है यहाँ पे। पहले इसको हम F5 बिग आईपी जीटीएम यहाँ पे मेंशन करते थे, बट जीटीएम की जगह पे अब डीएनएस आने लगा है। तो चैप्टर जो आपका चैप्टर 2 है, दैट इज ऑल अबाउट द डीएनएस। मतलब यहाँ पे मैं आपको बेसिकली डीएनएस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हाउ डज दिस वर्क, डीएनएस कैसे काम करता है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है डीएनएस के अंदर ना, जैसे रूट डोमेन हो गए, है ना, टॉप लेवल डोमेन्स हो गए, जिनको टीएलडी बोल देते हैं कई बार शॉर्ट फॉर्म में, टीएलडी टॉप लेवल डोमेन, फिर आपके सब डोमेन्स हो गए। तो वो समझना थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और डीएनएस कैसे रिजॉल्व होता है, डीएनएस सर्वर क्या होता है, डीएनएस क्लाइंट क्या होता है, वो थोड़ा सा इकोसिस्टम डीएनएस का आपको समझना जरूरी है बिफोर बिगिनिंग विद दी F5 डीएनएस मॉड्यूल। मतलब जब आप F5 डीएनएस पे इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करोगे तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि आपको डीएनएस की इंफॉर्मेशन है, आपको पता है कि हाउ डीएनएस वर्क, तभी आपको ये F5 जीटीएम की जो फंक्शनैलिटी है या F5 डीएनएस की जो फंक्शनैलिटी है वो आपको समझ में आएगी। अगर आपको डीएनएस की फंक्शनैलिटी नहीं आती है, इफ यू आर नॉट अवेयर विद द फंक्शनैलिटी ऑफ द F5 डीएनएस, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए समझना ये सब चीजें। ये है चैप्टर नंबर 2। उसके बाद है आपका एक्सेलरेटिंग डीएनएस रेजोल्यूशन। तो एक ये जो तरीका है, जो चैप्टर नंबर 3 है, बेसिकली इसमें हम क्या समझते हैं कि हाउ कैन वी एक्सेलरेट द परफॉर्मेंस ऑफ द डीएनएस by leveraging F5 DNS मॉड्यूल। मतलब यहाँ पे हम अपने F5 डीएनएस को, डीएनएस के ऊपर कोई डीएनएस सर्वर या डीएनएस एंट्रीज क्रिएट नहीं करेंगे, बट इसको एज ए प्रॉक्सी यूज करेंगे डीएनएस के लिए, और हम देखेंगे कि वी कैन रियली एक्सेलरेट द परफॉर्मेंस ऑफ द डीएनएस। मतलब you can keep using your existing DNS servers. Let's say you were having some Microsoft DNS servers. You can keep using them. That's okay. But at same time, if you introduce the big IP DNS into your network, you can see that you can accelerate the performance of the DNS by using a couple of methods. So there are a couple of methods that you could leverage to improve the performance of the DNS resolution. So you have got like multiple options, such as you can configure DNS caching, right? So you can enable caching to accelerate the DNS resolution. So in caching, you know, what happens is that first thing is first, that all the DNS requests should traverse through the big IP DNS, and then it should get landed onto backend DNS servers. And then in similar way, response should come back. So if response is coming back at that point of time, big IP DNS can cache those entries or can cache those DNS responses. So in future, if any client, if any user machine is trying to send the DNS request, it will go to big IP DNS, and big IP DNS will see, okay, I have an entry in my cache. So now big IP DNS can provide the response from local cache. Your DNS request does not need to reach out to the backend DNS server, and then that does not needs to be processed by the backend server. So that's an advantage of getting caching enabled, and this is how it works. So I will explain all those things in more details, but for now I'm just giving you an introduction, right? So this is all about the acceleration or accelerating DNS resolution. तो आप DNS resolution जो process आपका, उसको आप improve करते हो by leveraging that feature, those features, right? उसके बाद है implement intelligent DNS resolution, और एक यही तो है intelligent DNS resolution. That's why this F5 DNS became so popular. अगर हम आज आप लोग बैठे हो ना इधर ये F5 DNS समझने के लिए, like Srinivas joined this class only for F5 DNS, right? Only for the F5 DNS technology. So this is happening just because of this feature, this particular feature. इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन, बस यही तो इंप्लीमेंट करते हैं हम प्रोडक्शन में, क्योंकि जो ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर्स है उनमें इंटेलिजेंस नहीं होती है। अगर आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर्स हैं, लाइक, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर्स की बात करोगे तो आइडियली आप जाते हो और उधर वो डीएनएस सर्वर इंप्लीमेंट करते हो, आप वो होस्ट एंट्री क्रिएट करते हो और छोड़ देते हो। अब उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर को माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर वुड नॉट हैव विजिबिलिटी की जो एंट्री आपने क्रिएट की है वहां पे वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं है, तो मॉनिटरिंग नहीं कर सकता वो। अब मॉनिटरिंग नहीं करेगा तो फिर इंटेलिजेंटली रेस्पॉन्स भी नहीं दे पाएगा वो, तो मॉनिटरिंग होती ही नहीं है माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर्स के ऊपर। तो फिर वहां पे आपको जरूरत पड़ती है F5 डीएनएस जैसे प्रोडक्ट की, जो कि एक इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन परफॉर्म कर सकता है। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन में, जैसे आप
आप बोल सकते हो कि लेट्स से आई हैव गॉट मल्टीपल डेटा सेंटर्स अक्रॉस द ग्लोब, ऑब्वियसली होते ही हैं, अगर कोई आपकी एमएनसी होगी, कोई इफ देयर इज ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके जो डेटा सेंटर्स होंगे वो अक्रॉस द ग्लोब होंगे, जैसे गूगल इज वन ऑफ देम। तो आप देखोगे कि गूगल के डेटा सेंटर्स एपैक रीजन में भी होंगे, फिर वो आमेर रीजन में भी होंगे, और नॉर्थ वेस्ट दोनों में आमेर के अंदर, उसके अलावा फिर आपका ईमिया रीजन में भी होंगे। तो लाइक इन ईच रीजन यू वुड सी दैट गूगल हैज देयर ओन डेटा सेंटर्स। अब होता क्या है कि जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी, डीएनएस सर्वर तो दुनिया में एक ही है ना, वो 8.8.8, उसी को हिट करते हो ना आप। All over the world you use the same Google DNS server. अब if you are using Google DNS server and if you are trying to access google.com or whatever, maybe youtube.com or any other application that belongs to Google, right? जब आप उसको एक्सेस करते हो तो आइडियली गूगल क्या करता है, आपको आपको रीडायरेक्ट करेगा आपके नियरेस्ट डेटा सेंटर के पास। वो आपकी कंट्री में हो सकता है, वो आपके रीजन में हो सकता है, व्हाटसोएवर, बट वो आपको आपके नियरेस्ट डेटा सेंटर पे लेकर के जाएगा। दैट मीन्स कि जब आप www.google.com के लिए डीएनएस रिक्वेस्ट जनरेट करोगे, तो कुछ तो उसके पास मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो देख पाए कि ये जो डीएनएस रिक्वेस्ट है वो आमेर रीजन से आई है, या वो ईमिया रीजन से आई है, या फिर ये एपैक रीजन से आई है, और फिर उसके बाद डिसीजन ले कि कौन से डेटा सेंटर का आईपी इसको रिस्पॉन्स में देना है। क्योंकि जो गूगल एप्लीकेशन है वो तो हर एक डेटा सेंटर में होस्टेड है। ऑब्वियसली ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको कि इफ यू हैव गॉट एप्लीकेशन देन यू नीड टू मेक श्योर दैट दैट एप्लीकेशन, दैट कॉमन एप्लीकेशन, दैट सिंगल एप्लीकेशन इज होस्टेड अक्रॉस ऑल डेटा सेंटर्स। कहीं किसी भी डेटा सेंटर से वो एक्सेस होनी चाहिए एप्लीकेशन। बट एट सेम टाइम यू वांट कि ठीक है, जिस रीजन में जो डेटा सेंटर है वो उस रीजन के यूजर्स को अकोमोडेट करे, एज लॉन्ग एज दैट डेटा सेंटर इज अवेलेबल। आई मीन व्हेन आई से डेटा सेंटर अवेलेबल, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी से है कि एज लॉन्ग एज एप्लीकेशन इज रनिंग इन द लोकल डेटा सेंटर, ऑल द यूजर्स विद इन दैट रीजन शुड हैव एक्सेस टू दैट एप्लीकेशन फ्रॉम द लोकल रीजन डेटा सेंटर और रीजनल डेटा सेंटर। होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? यस यस, दिस इज व्हाट शुड हैपन, राइट? कि ठीक है, जो अवेलेबल है मेरे रीजन में डेटा सेंटर में, वहां से एक्सेस करूं। और उसमें फिर ये भी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि अगर इन केस वो जो हमारा प्राइमरी डेटा सेंटर है, लेट्स से इफ दैट गोज डाउन, तो फिर F5 शुड बी F5, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द F5 फॉर नाउ, आई विल टेक द नेम ऑफ डीएनएस। तो फिर डीएनएस के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको पता चल जाए कि प्राइमरी इज डाउन नाउ, and therefore I should start providing an IP address of the secondary data center in my DNS responses, right? So that the end users would have access to the application using secondary data center, and जो हमारे end users हैं they would never come to know कि कुछ हुआ है, कुछ डाउन हुआ है। नो, क्यों? क्योंकि वो थोड़े ना देखते हैं, वो तो नेम से एक्सेस करते हैं ना। बैकएंड में क्या आईपी मिल रहा है कभी आप चेक करते हो एज ए एंड यूजर? आप एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचो, डू यू रियली केयर कि व्हाट आईपी एड्रेस यू आर गेटिंग इन द डीएनएस रिस्पांस एंड फ्रॉम व्हिच डेटा सेंटर यू आर हैविंग एक्सेस टू द एप्लीकेशन? डू यू रियली केयर अबाउट दैट? नो. The only thing that you care about is the availability of the application and the performance of the application, isn't? Right. So, and that's what F5 DNS would help you to make sure that your applications are always available. And not only DNS, basically it is the ecosystem of the F5 that they have built. Like they have built F5 DNS and then LTM. So LTMs are also equally responsible as you have DNS. It's just that LTM is doing load balancing locally within a data center, whereas GTM would help you to perform load balancing globally across the data centers. Does that make sense? Yes, yeah. Yeah. अब इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन पे, सो यू हैव गॉट सो मेनी थिंग्स लाइक डेटा सेंटर्स आपको कॉन्फ़िगर करने होते हैं डीएनएस पे, फिर आपको डीएनएस सिस्टम्स को या जो बिग आईपी सिस्टम्स होते हैं उनको एज ए सर्वर आपको ऐड करना होता है, चाहे वो आपके बिग आईपी डीएनएस हो, चाहे वो आपके बिग आईपी एलटीएम्स हो। उनको एज ए सर्वर आप ऐड करते हो अपने डीएनएस के ऊपर। फिर उसके बाद आप iQuery कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कराते हो बिटवीन बिग आईपी डीएनएस एंड बिग आईपी एलटीएम। अभी iQuery क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है, कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है, 5 का अपना प्रोटोकॉल है ये, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना सिस्को प्रोप्राइटरी, वैसे F5 प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है ये। फिर जरूरी नहीं होता कि जो F5 डीएनएस है वो सिर्फ F5 सर्वर्स को ही सपोर्ट करेगा, मतलब F5 एलटीएम के साथ ही काम करेगा। अगर आपको F5 डीएनएस के ऊपर डायरेक्टली अपने नॉन F5 सर्वर्स को ऐड कराना है, जैसे कभी कभी क्या होगा कि यू हैव गॉट ए विंडोज सर्वर जहां पे आपने एप्लीकेशन होस्ट की हुई है, उसके लिए कोई एलटीएम सर्विसेज आप यूज नहीं कर रहे, तो उस सर्वर को भी या उस सर्वर के लिए भी आप F5 डीएनएस पे डायरेक्टली एंट्री क्रिएट करा सकते हो। दैट्स डूएबल एंड आई हैव डन दैट अ लॉट, मतलब मैं पर्सनली कर चुका हूँ वो काम, जहां पे मैंने देखा है कि
We do not require any LTM to perform kind of load balancing. Why? Because we have got a standalone server. तो आप देखोगे कि जब भी आपके पास एक स्टैंडअलोन सर्वर होगा तो आप उसके लिए कभी LTM सर्विसेज को यूज करते नहीं है. तो उस केस में इफ यू वांट टू एक्सेस दैट एप्लीकेशन यूजिंग नेम, देन यू हैव टू क्रिएट एन एंट्री ऑन योर DNS, and that's how you add the non big IP DNS then. So non F5 server to the big IP DNS, correct? तो फिर यहाँ पे फिर एक वाइड आईपी का कॉन्सेप्ट आ जाता है. फिर यहाँ पे वाइड आईपी के साथ साथ फिर यहाँ पे अब ये वाइड आईपी क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा मुझे कि वाइड आईपी क्या होता है, राइट? और वाइड आईपी पूल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आप देखोगे कि किस तरीके से हम इसको बिल्ड करेंगे. तो वाइड आईपी बेसिकली जैसे इसका नेम है ना वाइड आईपी, तो ऐसे मत सोचना कि एक कोई ऐसा आईपी एड्रेस होगा जो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि नेम से तो ऐसे ही लग रहा है ना इंग्लिश में. इंग्लिश में तो ये लिखा हुआ है वाइड आईपी. वाइड का मतलब क्या होता है? बड़ा. तो ऐसा होगा कि इट्स अ बिग आईपी एड्रेस, राइट? बट ऐसा है नहीं, क्योंकि बिग आईपी का मीनिंग भी ये नहीं कि आईपी बड़ा हो गया आपका, राइट? बिकॉज F5 यूज दोस टर्मिनोलॉजीज एंड दोस टर्मिनोलॉजीज आर रियली कंफ्यूजिंग. जैसे बिग आईपी की बात करोगे तो बिग आईपी मतलब बड़ा आईपी. यहाँ पे वाइड आईपी डाल दिया. वाइड आईपी का मतलब क्या है? वाइड आईपी मतलब कुछ अलग से आईपी यूज कर रहे हैं ये नहीं, है ना? तो हम समझेंगे इसको कि वाइड आईपी क्या होता है. बेसिकली जो वाइड आईपी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये ऐसे मान के चलो जैसे आप होस्ट ए एंट्रीज क्रिएट करते हो ना. आप मेनली देखना आप यहाँ पे भी F5 DNS में भी आप होस्ट ए एंट्री क्रिएट करोगे मैक्सिमम टाइम, और उसके लिए आपको फिर ये वाइड आईपी की रिक्वायरमेंट होगी. तो वाइड आईपीज आप क्रिएट करोगे, और वाइड आईपीज को क्रिएट करके आप लोकली एंट्रीज क्रिएट करते हो कि इफ somebody इज आस्किंग फॉर www.google.com, तो दिस इज गोइंग टू बी एन आईपी एड्रेस. वही सारी चीजें हैं. तो वाइड आईपी आप कॉन्फ़िगर करते हो. वाइड आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद एक पूल क्रिएट करते हो, और उस पूल में वो सारे वर्चुअल सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस डालोगे आप जो उस एप्लीकेशन को सर्विसेज दे रहे होंगे. और फिर वो पूल एसोसिएट करते हो आप वाइड आईपी के साथ, और उसमें साथ में लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम आप डिफाइन करते हो. सो बेसिकली आपने एक नेम डिफाइन किया www.google.com, और उसके साथ आपने एक एसोसिएट कर दिया पूल. उस पूल में से आपका जो F5 GTM होगा, F5 DNS होगा, वो कोई एक आईपी एड्रेस पिक करके DNS रिस्पॉन्स में देगा बेस्ड ऑन लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम. बाय डिफॉल्ट राउंड रोबिन रहता है. तो राउंड रोबिन के केस में तो ये होगा कि if you have got like two pool members, like you had active data center and then you had maybe I mean kind of primary DC and then DRDC, वो दोनों डेटा सेंटर्स के आईपीस आप उस पूल में रखोगे. तो F5 DNS क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट राउंड रोबिन फैशन में वो कब एक DNS रिक्वेस्ट आएगी तो उसमें प्राइमरी डीसी का आईपी देगा, और दूसरा DNS रिक्वेस्ट आएगी किसी दूसरे क्लाइंट से, तो फिर उसको वो दूसरे DRDC का आईपी एड्रेस दे देगा. अब लेट्स से यू वांट कि नहीं, मेरे को तो सिर्फ प्राइमरी डीसी का ही आईपी देना है DNS रिस्पॉन्सेज में, एज लॉन्ग एज प्राइमरी डीसी इज अप एंड रनिंग. मैं सिर्फ प्राइमरी डीसी का ही आईपी DNS रिस्पॉन्सेज में देना चाहता हूँ. एंड इन केस if primary DC goes down, then only my F5 DNS should start providing an IP address of the DRDC. This is what I want. I don't want कि मेरा जो F5 DNS है वो DRDC का IP एड्रेस दे प्राइमरी DC के होते हुए. मेरा प्राइमरी DC भी यहाँ पे, फिर भी मेरा F5 DNS DRDC का IP एड्रेस वो रेस्पॉन्स में दे रहा है. आई डोंट वांट दैट. तो उसके लिए फिर आपको लोड बैलेंसिंग को मॉडिफाई करना होता है. एज आई सेड कि बाय डिफॉल्ट होता है राउंड रोबिन, तो फिर उस केस में तो वो देगा, बट देन यू कैन चेंज इट टू सम अदर लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम. जैसे मोस्टली अगर आप देखोगे प्रोडक्शन में तो वो होता है ग्लोबल अवेलेबिलिटी. ग्लोबल अवेलेबिलिटी में क्या होगा? आपको एक प्रायोरिटी देनी होगी कि कौन सा डेटा सेंटर प्रायोरिटी वाला डेटा सेंटर है, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी किस डेटा सेंटर को है, प्राइमरी डेटा सेंटर कौन है, वो आप डिफाइन करो. अब जब तक वो अवेलेबल है तब तक वो किसी दूसरे आईपी को DNS रिस्पॉन्स में नहीं देगा. तो वो ग्लोबल अवेलेबिलिटी हम चेंज कर लेते हैं, मतलब लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम चेंज कर लेते हैं पूल के अंदर. तो वही सारी चीजें हैं कि वाइड आईपी कैसे डिफाइन करोगे, पूल कैसे बनाओगे, है ना, उनको मॉनिटर कैसे करोगे, वही सब चीजें हैं. तो ऐसे मान के चलो जैसे पहले आप एक LTM के ऊपर वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते थे, उसके साथ एक पूल एसोसिएट करते थे. फिर जो वर्चुअल सर्वर का स्टेटस है वो पूल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता था. पूल के अंदर पूल मेंबर्स होते हैं, पूल का स्टेटस मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. सो इट्स लाइक क्वाइट सिमिलर जो आप LTM में करके आए हैं. फिर यहाँ पे LDNS प्रॉप्स एंड मैट्रिक्स आप यूज कर लेते हो टू टेक द इंटेलिजेंट, आई वुड से टू टेक द इंटेलिजेंट डिसीजंस. तो अगर आप इंटेलिजेंटली डिसीजंस लेना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे LDNS प्रॉप्स एंड मैट्रिक्स को कॉन्फ़िगर करना होता है. तो आप जब उनको यूज करोगे LDNS प्रॉप्स एंड मैट्रिक्स को, तो आप इंटेलिजेंट DNS रेजोल्यूशन परफॉर्म कर पाओगे, है ना. देखो जैसे ही आपने क्या कवर किया यहाँ पे LDNS प्रॉप्स एंड मैट्रिक्स, उसके बाद आप क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? इंटेलिजेंट DNS रेजोल्यूशन.
तो उसमें आपके पास लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम हो जाती है, जैसे राउंड रोबिन रेशियो, ग्लोबल अवेलेबिलिटी, स्टैटिक परसिस्ट। ये सब तो क्या है, स्टैटिक लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम है। इसके लिए आपको किसी एलडीएनएस प्रॉब या मैट्रिक कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी। बट अगर आप डायनामिक लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स की बात करोगे या मेथड्स की बात करोगे F5 डीएनएस पे, तो उसमें आ जाता है राउंड ट्रिप टाइम, या कंप्लीशन रेट आ जाता है, या लीस्ट कनेक्शन आ जाता है, या हॉप्स आ जाता है। तो इसके लिए फिर आपको जरूरत होगी कि आप पहले क्या इनेबल कराएंगे, एलडीएनएस प्रॉब्स एंड मैट्रिक्स, उसके बाद ही आप ये डायनामिक लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम यूज कर सकते हो। तो ये एल्गोरिदम्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से हम क्वालिटी ऑफ सर्विस, एक टर्मिनोलॉजी होती है। अब इसका मीनिंग वो वाला क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं है जो आपने कभी से इसको राउटर पे कॉन्फ़िगर किया हो कि पॉलिसर लगा दो, शेपर लगा दो, क्यूज बना दो, वो वाला नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस को आप एज ए लोड बैलेंसिंग यूज कर सकते हो। होता क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। लाइक अगर मैं यहाँ पे कंप्लीशन रेट, सीपीयू, हॉप, सब कुछ मिला के एक लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम बनती है, और जिसको हम कहते हैं क्यूओएस, क्वालिटी ऑफ सर्विस लोड बैलेंसिंग। मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस लोड बैलेंसिंग ही बोलेंगे, क्यूओएस नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्यूओएस बोल के फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। क्वालिटी ऑफ सर्विस ही बोलो। तो ये तब वो टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे डायनामिक परसिस्टेंस कैसे काम कर रही है यहाँ पे, स्टैटिक परसिस्ट लोड बैलेंसिंग कैसे काम कर रही है, रेशियो लोड बैलेंसिंग, ग्लोबल अवेलेबिलिटी, ये सब टेस्ट हैं। ऊपर ये क्या था कि ये सब आपको समझना है थियोरेटिकली। उसके बाद जो टेस्टिंग करनी है, जो लैब्स परफॉर्म करनी है, वो ये एल्गोरिदम्स हैं। जैसे डायनामिक परसिस्टेंस क्या होगा, स्टैटिक परसिस्ट, लोड रेशो, है ना, ग्लोबल अवेलेबिलिटी, मैनुअल रिज्यूम क्या होगा इसमें। ठीक है। और लास्ट में है टोपोलॉजी लोड बैलेंसिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। टेस्ट टोपोलॉजी लोड बैलेंसिंग, टोपोलॉजी में ही वो हम करते हैं जो बताया था ना आपको, जैसे कंट्री के बेसिस पे कि इस कंट्री से रिक्वेस्ट आए तो ये रिस्पॉन्स जाना चाहिए, डीएनएस रिस्पॉन्स में ये वाला आईपी जाना चाहिए। या इस रीजन से, पैक रीजन से आए तो फिर ये, ईयू से आए तो ये, आमेर से आए मतलब जो यूएस रीजन है वहां से रिक्वेस्ट आए तो ये वाला रिस्पॉन्स जाना चाहिए। वो सब आप यहाँ पे किस में डिफाइन कर सकते हैं, टोपोलॉजी के अंदर। तो वो उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी लोड बैलेंसिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सेक्शन है ना आपका, ये जैसे चैप्टर नंबर एक तो आपका 4 हो गया, चैप्टर नंबर 5 हो गया, और चैप्टर नंबर 6, इसमें भी 4 और 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी तो उतना नहीं है। 4 और 6 कर लोगे तो दैट मीन्स कि यू आर नाउ प्रीटी मच गुड विद F5 DNS। ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर 7, जिसमें कि खाली मॉनिटरिंग है। तो आप मॉनिटर करते हो कि आपके जो जैसे आप बनाते हो ये वाइड आईपी पूल्स एंड ऑल, तो वो सब अवेलेबल कैसे कैसे उनको मॉनिटर कर सकते हो, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, है ना। तो वो सब मॉनिटर्स का क्या इम्पैक्ट आएगा डीएनएस रेजोल्यूशन पे, तो वो सब चीजें आप देखोगे। फिर यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आप कई बार देखोगे कि डीएनएस सैक इनेबल कर देते हैं डीडोस अटैक से बचने के लिए। डीडोस अटैक से बचने के लिए डीएनएस सैक इनेबल कर सकते हैं। तो वो डीएनएस सैक का आप देखोगे कि किस तरीके से इनेबल करा सकते हो आप। आई रूल्स का देखोगे कि आई रूल्स विद वाइड आईपी कैसे यूज कर सकते हो, या फिर आप कैसे रिसोर्स अवेलेबिलिटी के लिए अपनी लिमिट्स को सेट कर सकते हो। वो एक दो चीजें आएंगी, छोटी मोटी चीजें हैं। और फिर उसके बाद आपका वाइड आईपी पूल बेस्ड ऑन क्लाइंट आईपी एड्रेस, ये भी आप कर सकते हो बेस्ड ऑन आई रूल्स, है ना। आई रूल को यूज करके आप ऐसा कर सकते हो। बाकी इंट्रोड्यूसिंग अदर वाइड आईपी टाइप्स। और फिर आपका आ जाता है इसमें हाई अवेलेबिलिटी। और ध्यान रख से देखो यहाँ पे सिर्फ सिंक ग्रुप है, फेलोवर नहीं है। जैसे आपने एलटीएम में किया था ना, फेलोवर प्लस सिंक, याद आया कुछ, कराया था मैंने, बड़ा अच्छा टाइम लेकर के आपको एलटीएम में कराया था, फेलोवर प्लस सिंक। वो वाला मेथड ही नहीं यूज करते हम यहाँ पे। डीएनएस में फेलोवर वाला यूज ही नहीं करते हैं। डीएनएस में हम यूज करते हैं सिंक ओनली ग्रुप, सिर्फ सिंक कराते हैं। मतलब एक्टिव एक्टिव मोड में यूज करोगे आप इन दोनों को ना, एक्टिव एक्टिव मोड में। और कॉन्फ़िगरेशन सिंक कराते हैं। सिंक कराने से क्या होगा कि अगर एक डिवाइस के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो ना, तो वो दूसरे पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब अगर एक डीएनएस डाउन होता भी है तो दूसरे पे वो सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होगी, एंड यू विल कीप यूजिंग दैट। तो सिंक ओनली ग्रुप्स बनते हैं इसमें F5 डीएनएस के केस में, तो वो आप देखोगे बस। बाकी तो लास्ट में एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये यही है सर, यही है डीएनएस में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि विच ऑल टॉपिक्स यू वुड बी कवरिंग ड्यूरिंग दिस F5 डीएनएस ट्रेनिंग। इज दैट क्लियर नाउ? Yes, it's clear. ठीक है, ओके। सो श्रीनिवास, आपको क्लैरिटी मिल गई विच ऑल टॉपिक्स यू वुड बी कवरिंग। और ये हमारा अपना कंटेंट नहीं है, दिस इज द कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द F5 for this training. Fine, fine. Can you share this PDF?
I'm not sure if I can share it with you. I mean, I cannot share it with you. You can ask Saurabh Rawat or Mr. Sugandh Kansal. They will get this uploaded to your portal. Fine, fine. So that's that. Okay, अब मैं बात कर लेता हूँ लैब की आप लोगों के साथ में, राइट? क्योंकि this is also one thing which is really important for you to understand. तो ये लैब है हमारी F5DNS की, और इसको अगर आप थोड़ा सा रीड करोगे अच्छे से, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा के रीड करोगे, करा देता हूँ इनफैक्ट, क्योंकि आज तो मैं इसमें कुछ करा नहीं पाऊंगा आपको, लैब का इस लैब का एक्सेस नहीं लूंगा, दूसरे लैब का एक्सेस लूंगा। बट अगर आप इसको ध्यान से समझोगे ये लैब को, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये डीएनएस के लिए ही बनी है। ऑब्वियसली एलटीएम के प्रैक्टिकल्स भी कर सकते हो आप इसमें, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। एलटीएम भी आप डिप्लॉय कर सकते हो और साथ में आप डीएनएस भी इसमें चला सकते हो। ओके, सो इफ आई से कि ये देखो, यहाँ पे बेसिकली यू हैव गॉट मल्टीपल डेटा सेंटर्स। तो एक डीसी ये है आपके पास, दिस इज द वन डीसी, एंड देन वी हैव गॉट अनदर डीसी, दिस इज DC2। तो हमारे पास दो डेटा सेंटर्स हो गए, करेक्ट? और यही तो चाहिए था हमें। और बैकएंड में एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन रन हो रही होगी वो दोनों डेटा सेंटर में रन हो रही होगी, राइट? और एक चीज और आप यहाँ पे नोटिस करोगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डेटा सेंटर्स हैं, तो आप देखो ये जो इंटरनल सबनेट है हमारा, वो दोनों डेटा सेंटर में मैंने कॉमन पिक कर लिया। इनफैक्ट राउटर और बिग आईपी के बीच में जो सबनेट है 100.0/24, वो भी कॉमन है। और इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन, फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप अल्टीमेटली नेट आईपी एड्रेस, मतलब जो पब्लिक आईपी पूल है ना आपका, जो वर्चुअल सर्वर के लिए पब्लिक आईपी पूल है, आप उसको यूज करके एक्सेस करोगे अपने एप्लीकेशंस। तो इंटरनली क्या प्राइवेट आईपीज हैं क्या नहीं है, वुड इट रियली मैटर फॉर यू? ऑब्वियसली नो, बिकॉज अल्टीमेटली जो आप एंड यूजर को एक्सेस दोगे अपने एप्लीकेशंस का, वो यूजिंग पब्लिक आईपी दोगे। तो पब्लिक पूल डिफरेंट है, यूनिक है दोनों में। तो ऊपर लिया मैंने 5550/24 और नीचे लिया 6660/24, अगर आप देखोगे ध्यान से तो। फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक डीएनएस वाला सेक्शन भी है जहां पे आपके डीएनएस सर्वर्स इंस्टॉल्ड है। आइडियली ये किसी एक डेटा सेंटर में होगा या दोनों में एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैंने कहा ना, सिंक ओनली ग्रुप बना देते हैं, तो बिग आईपी डीएनएस आपका प्राइमरी डीसी में भी रहेगा और डीआरडीसी में भी रहेगा, और सिंक ओनली ग्रुप में डाल के उसको दैट्स इट, बस उतना करके छोड़ दोगे। पॉइंट ये है मेरा कि ये जो बिग आईपी डीएनएस है, यहाँ पे मैंने अलग रखा है। अलग इसलिए रखा है जिससे कि आपको समझ में आए ये चीजें कि हाँ, एफ आई डीएनएस पे आपको F5 LTM को ऐड कराना पड़ता है वगैरह वगैरह, इसलिए इसको अलग रखा है। नहीं तो ये जो सेक्शन है ये दोनों डेटा सेंटर में आपको दिखने वाला है, दोनों में विजिबल होगा। बट यहाँ पे ये सेक्शन मैंने अलग रखा और बैकएंड में आपके डीएनएस सर्वर्स को रखा है, और ये विंडोज डीएनएस सर्वर्स है। तो आप देखोगे पहले अगर आप डायरेक्टली एक्सेस करना चाहोगे अपने विंडोज डीएनएस सर्वर्स को, वो आप कर सकते हो। उसके बाद हम इसको एज ए प्रॉक्सी यूज करना स्टार्ट करेंगे F5 DNS को। तो आप पहले तो सीखोगे कि कैसे हम अपने डीएनएस प्रोसेस को, या डीएनएस जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं बाय एनेबलिंग कैशिंग, या फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जोन ट्रांसफर का यहाँ पे। और उसके बाद तो फिर मैं आपको इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन कराऊंगा ही इसके ऊपर, जिसमें कि आप ये एलटीएम्स को डायरेक्टली ऐड कराओगे यहाँ पे। फिर जो एप्लीकेशंस यहाँ पे आप होस्ट करोगे, उसके लिए यहाँ पे आप वाइड आईपी क्रिएट करोगे, मतलब होस्ट या एंट्री क्रिएट होगी डायरेक्टली बिग आईपी डीएनएस में। सो उस केस में आप इसको एज ए डीएनएस यूटिलाइज करने वाले हो, एज ए डीएनएस सर्वर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, बिग आईपी डीएनएस के लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, जैसे वाइड आईपी तो एक टर्मिनोलॉजी हो गई आपकी, बट एक और टर्मिनोलॉजी होगी यहाँ पे जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं बेसिकली लिसनर, लिसनर बोलते हैं। और इसको भी आप कंपेयर करोगे अपने वर्चुअल सर्वर से। जैसे एलटीएम में, अगर इफ यू डू नॉट क्रिएट द वर्चुअल सर्वर, जस्ट इमेजिन दैट यू नेवर क्रिएटेड ए वर्चुअल सर्वर ऑन एलटीएम, तो क्या एलटीएम डेटा को रिसीव करके प्रोसेस करेगा? बोलिए, इफ यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी virtual No, server, it will so not. will it be possible for LTM to receive your data, to accept your data and to process it? Of course no. और ये भी देखा होगा कि F5 LTM का जो डिफॉल्ट, या F5 बिग आईपी की अगर मैं बात करूं, बिग आईपी का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो फायरवॉल वाला होता है, ऑल डिनाइड, है ना भाई? अगर ट्रैफिक कहीं मैच करा के उसको प्रोसेस नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट ड्रॉप ही करने वाला है ना, फायरवॉल की तरह। तो जब आप वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हो, if destination IP of the packets are matching with the virtual server IP, तो वर्चुअल सर्वर उसको प्रोसेस कर सकता है। इन सिमिलर वे, जब एक डीएनएस रिक्वेस्ट आपके बिग आईपी डीएनएस को हिट करेगी, तो यहाँ पे भी वैसे ही कॉन्सेप्ट रहेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब आप एक F5
बिग आईपी डीएनएस आप इंप्लीमेंट करोगे तो इसके पास कोई डीएनएस रिक्वेस्ट आएगी। जब इसके पास डीएनएस रिक्वेस्ट आएगी तो ये प्रोसेस करेगा उस डीएनएस रिक्वेस्ट को कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने लिसनर कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं किया। तो एक लिसनर कॉन्फ़िगर होता है बिग आईपी डीएनएस पे, और वो लिसनर जो आईपी एड्रेस रहेगा ना, वो ये जो आपके लेन यूजर मशीन्स हैं, वो डीएनएस सर्वर क्या रहेगा उनके लिए बताएंगे आप, वो लिसनर। So if you are configuring your F5 Big IP DNS as a DNS server for your lane users, तो उस केस में जो आपके F5 Big IP DNS सर्वर का जो लिसनर आईपी एड्रेस होगा, लिसनर जैसे वर्चुअल सर्वर बनता है एलटीएम पे, वैसे बिग आईपी डीएनएस में क्या बनेगा, लिसनर। वो लिसनर का आईपी एड्रेस यहाँ पे एज ए सर्वर आपको यूज करना होगा अपने क्लाइंट मशीन्स के ऊपर। तो इसको समझ में आएगा कि अच्छा ये तो लेट्स से आपने एक लिसनर बनाया और इसका पब्लिक आईपी रखना आप, है ना, पब्लिक ही रखोगे तभी तो इंटरनेट पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और अगर इंटरनल है आपका तो फिर प्राइवेट आईपी आप यूज कर सकते हो। फिलहाल पब्लिक रखा आपने, तो यहाँ पे जब आप वो पब्लिक आईपी एड्रेस ऐसे डीएनएस सर्वर यूज करोगे तो जो भी डीएनएस रिक्वेस्ट जाएगी वो यहाँ पे आएगी फिर इस लिसनर के पास, और फिर ये लिसनर उसको प्रोसेस करेगा। तो फिर जैसे जब आप वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हो तो वर्चुअल सर्वर से जब ट्रैफिक हिट करता है एलटीएम के ऊपर, तो फिर वो देखता है कौन सा पूल है, कौन सा मेंबर है, ये वगैरह वगैरह, कौन सा एल्गोरिदम है, कोई पॉलिसी तो नहीं है, कोई आई रूल तो नहीं है, मतलब प्रोसेस करेगा और उसके बाद डिसीजन लेगा, राइट। सेम यहाँ पे लिसनर को हिट करोगे आप, और उसके बाद फिर ये देखता है कि इसको करना क्या है। पहले देखेगा वाइड आईपी की वाइड आईपी है या नहीं है इस रिक्वेस्ट के लिए। अगर वाइड आईपी डेटाबेस में नहीं मिला उसको कुछ, तो उसके बाद ये देखेगा फिर यार मेरे को जोन ट्रांसफर देख लेता हूँ, जोन एक्सप्रेस। अब जोन एक्सप्रेस में भी नहीं मिला तो फिर देखेगा कैश में भी नहीं मिला तो देखेगा अच्छा इस लिसनर में कोई पूल एसोसिएटेड है क्या। अगर पूल एसोसिएटेड है तो उसके बीच में लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम क्या है, और उसके बेसिस पे फिर ये लोड बैलेंस कर देगा रिक्वेस्ट को, डीएनएस रिक्वेस्ट को बैकएंड सर्वर्स के बीच में। अब आप कहोगे सर यार ये बिग आईपी डीएनएस को सिर्फ डीएनएस रिक्वेस्ट को लोड बैलेंस करने के लिए आप यूज कर रहे हो, ये काम तो एलटीएम भी कर देता, फिर यहाँ क्यों लगाया है डीएनएस। भाई अगर लोड बैलेंसिंग ही करानी है, मान के चलो मेरे पास दो बैकएंड माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर्स हैं, और उन दोनों के बीच में इफ यू वांट टू परफॉर्म लोड बैलेंसिंग फॉर ऑल द इनकमिंग डीएनएस रिक्वेस्ट, की डीएनएस रिक्वेस्ट किसको हिट कर रही है, बिग आईपी डीएनएस को, और ये बिग आईपी डीएनएस लोड बैलेंस कर रहा है अमंग दीज टू बैकएंड डीएनएस सर्वर्स। तो अगर यही काम कराना था तो फिर एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहे हो, वो ये काम तो एलटीएम से भी हो जाता। डू यू एग्री और नॉट। अरे अगर लोड बैलेंसिंग ही करानी होती तो कांट वी डू दैट यूजिंग एलटीएम। Yes, yeah. Obviously, we can create a virtual server on LTM and then we can add these backend servers as a pool member, right? And then we Right. could associate that pool to that virtual server. तो आपका load balancing तो LTM भी कर देगा, that is not an issue. बट जो इसके पास वो इंटेलिजेंट नेम रेजोल्यूशन, जो इसके पास जो फीचर्स है वो कहाँ से लाओगे, वो एलटीएम में पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। Fine. हाँ, जैसे वाइड आईपी क्रिएट करना, या फिर अगर हम बात करें डीएनएस सर्वर्स के लिए, मतलब जो मैंने लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स बताई थी, ग्लोबल अवेलेबिलिटी या फिर जियो लोकेशन बेस्ड लोड बैलेंसिंग, जिसको कि आप टोपोलॉजी बेस्ड लोड बैलेंसिंग बोल देते हो, सो ऑल दोस फीचर्स विल नॉट बी सपोर्टेड बाय द बिग आईपी एलटीएम इफ यू आर यूजिंग बिग आईपी एलटीएम एज ए लोड बैलेंसर फॉर दिस डीएनएस सर्विस। तो ये प्रॉब्लम आएगी एलटीएम के साथ में, नहीं कर सकते, वो सारे फीचर नहीं है एलटीएम में जो डीएनएस के अंदर, और तभी तो डीएनएस मॉड्यूल अलग से लॉन्च किया F5 ने। अगर वही सारे फीचर्स एलटीएम में होते तो फिर जस्ट इमेजिन कि F5 एक अलग से मॉड्यूल क्यों निकालेगा डीएनएस के लिए राइट। अलग से मॉड्यूल निकालने का मीनिंग है कि इट हैज गॉट लॉट मेनी फीचर्स ऑब्वियसली विच आर नॉट सपोर्टेड इन एलटीएम। और वैसे भी मैंने बताया आपको एलटीएम का मीनिंग क्या होता है, लोकल ट्रैफिक मैनेजर, और डीएनएस को पहले क्या बोलते थे, जीटीएम, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर। तो लोकल ट्रैफिक मैनेजर और ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर में मेजर डिफरेंस क्या रहेगा, कि लोकल ट्रैफिक मैनेजर इज गोइंग टू परफॉर्म लोड शेयरिंग, लोड बैलेंसिंग लोकली विद इन ए डेटा सेंटर आइडियली, मतलब आप ऐसे बोलोगे। और जो जीटीएम होता है, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर, दैट डज लोड बैलेंसिंग ग्लोबली। जैसे टोपोलॉजी के बेसिस पे लोड बैलेंसिंग करा सकते हो आप, या आप किसी एक डीसी को प्राइमरी डीसी, बाकी को डीआरडीसी ऐसे बना के आप यूज कर सकते हो, लाइक दैट, करेक्ट। समझ आया। अच्छा उर्शाल, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, सो जस्ट टू इन्फॉर्म यू, I've just got started this big IP DNS introduction here, right? तो जो Okay, fine. LTM का वो जो दो टॉपिक थे ना हमारे, Uh-huh. दो ही टॉपिक्स बचे हुए थे ना एलटीएम में, एक आई रूल था और एक पॉलिसी था। Right, डिस्कस तो right. कर लिया था पिछले क्लास में भी, मतलब अगर आप देखोगे तो आई रूल को यूज कर लिया था हमने। Correct, correct. यूआर जो HTTP टू HTTP रिडायरेक्शन था, सेम मैंने पॉलिसी को यूज कर लिया था। तो आपको ये तो पता है कि हाँ आई रूल और पॉलिसी यूज कैसे करना है, बट उसको थोड़ा सा और मेरे को
एलाबोरेट करना था, ओके। को एलाबोरेट करने के लिए मैं डीएनएस का ही यूज करूंगा। तो अब डीएनएस स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, तो इसी में मैं आपको वो करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी आई रूल होते हैं आपके, तो इसी के साथ करा दूंगा। एनी क्वेश्चंस? नो। ओके, तो ये चीजें हैं सर। अब ये टोपोलॉजी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो इस टोपोलॉजी में लाइक वी हैव गॉट टू सेपरेट डेटा सेंटर्स। अगर आप ध्यान से देखोगे, DC1 एंड DC2, दैट्स व्हाट वी हैव। फिर उनके आईपी एड्रेसेस भी आप देख लो। DC1 में जो पब्लिक आईपी पूल है वो है 5550/24, और यहाँ पे है DC2 में। फिर एक पब्लिक आईपी पूल हमने बिग आईपी डीएनएस के लिए भी लिया है। और ये सभी जो डेटा सेंटर्स हैं जैसे DC1 या DC2, ये दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड है। इनफैक्ट आपका F5 DNS भी इंटरनेट से कनेक्ट करके रखा है। ये F5 DNS के पीछे बैकएंड में हमने ये दो दो विंडोज सर्वर भी रखे हैं, जिनको हमें एज ए डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा, और डीएनएस सर्वर की तरह ये एक्ट करेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे कि किस तरीके से वी कैन लेवरेज द बिग आईपी डीएनएस टू गेट दी सर्विसेज फ्रॉम दीज बैकएंड डीएनएस सर्वर्स। उसके बाद फिर जब इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन आप परफॉर्म करोगे, तो वो टाइम पे ऑन दिस बिग आईपी डीएनएस यू वुड बी एडिंग योर एलटीएम्स एज ए सर्वर, और उसके बाद आप यहाँ पे वो वाइड आईपी और वो सब क्रिएट करना सीखोगे। एनी क्वेश्चंस सो फार? Yeah, just one question. जी। The topology which is on top right, so that big IP will be configured as DNS, and in DC1 and इन टॉप DC2, those लेफ्ट, इन टॉप right, लेफ्ट, दिस वन। right. So this is DNS server, and ट्रू, in DC1 and DC2, those two big IPs are LTMs, right? correct. This is Okay, LTM. This is also LTM. fine. So don't we have another topology with two DNS servers in two different data centers? No, we don't have that, but we can implement like sync only group using this big Okay, IP DNS, and then we can also enable the DNS module on one of the LTM, and then we can do that. fine. As I told, DNS के केस में हम कभी भी failover कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। We only configure sync only groups. और सिंक Fine. ओनली ग्रुप जब आप क्रिएट करोगे, तो उसका जो पर्पस होगा वो होगा कि कॉन्फ़िगरेशन सिंक में रहे, दैट्स ऑल। Right. Fine. एलटीएम के लिए फेल ओवर कॉन्फ़िगर करते हैं हम हमेशा। Fine, sir. Thank you. ऑल राइट, सो दैट्स दैट। इसके अंदर मुझे ये देखना पड़ेगा आप लोगों के लिए कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है। अभी इसमें किसी भी F5 बिग आईपी डीएनएस को मैंने अभी तक एक्टिवेट किया नहीं है, तो वो एक्टिवेशन का काम तो मैं कल करूंगा। तब तक मैं आपको कुछ और चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, वो मैं आपको दूसरे टोपोलॉजी में करके दिखा देता हूँ, ठीक है? जो कि एलटीएम की टोपोलॉजी है मेरी। सो इफ आई ओपन अप दैट टोपोलॉजी, द एलटीएम टोपोलॉजी, तो जो ऑलरेडी जिन लोगों ने ज्वाइन करके रखा हुआ था इस बैच को, तो दे आर प्रीटी मच फैमिलियर विद दिस टोपोलॉजी, ठीक है? तो ये एलटीएम की टोपोलॉजी है, जिसमें हमने एचए के अंदर बिग आईपी 1 एंड 2 को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूं, तो आप देखोगे अभी भी वो एचए में ही स्टार्ट होंगे। तो बिग आईपी 1 को हमने प्राइमरी बिग आईपी बना के रखा है एचए ग्रुप के अंदर, और सेकेंडरी है हमारा बिग आईपी 2। तो एक्टिव होना चाहिए बिग आईपी 1 को, और स्टैंड बाय होना चाहिए बिग आईपी 2 को। यही कॉन्फ़िगर किया था ना विशाल, वुरशाल एंड ग्लेन प्रीवियसली हमने। आई मीन दिस इज व्हाट वी हैव कॉन्फ़िगर्ड। तो Yeah, मैंने that's इसी right. का एक्सेस लिया है, और इसका एक्सेस लेने के बाद मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाऊंगा, जैसे इनिशियल सेटअप एंड ऑल। वो मैं करके दिखा देता हूँ अभी। वैसे एलटीएम वालों के लिए तो ये रिवीजन होगा, बट दैट्स ओके। जैसे बिग आईपी 2 है, तो मैं इसको रीसेट करके और दोबारा कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। तो एचए तो ब्रेक हो जाएगा, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ एचए बना हुआ है, तो बिग आईपी 1 इज एक्टिव एंड बिग आईपी 2 इज स्टैंड बाय। दे शुड बूट अप लाइक दैट। और उसके बाद फिर मैं बिग आईपी 2 को रीसेट कर दूंगा। तो यू वुड गेट टू नो कि हाउ डू वी रियली परफॉर्म दैट रीसेट ऑफ द बिग आईपी, है ना? तो आप देखोगे कि किस तरीके से बिग आईपी को हम रीसेट करने वाले हैं। और जब हम रीसेट करते हैं, तो क्या क्या चीजें ये परसिस्ट करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज यू शुड बी अवेयर। एलटीएम में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट यहाँ पे अब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो पहले बूट होने दो इनको, और बूट होने के बाद में हम इनका एक्सेस लेंगे। तो एक तो है 30.45 और एक है 46। एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू। अभी इनका जो एप्लीकेशन सर्विसेज है वो स्टार्ट हुई नहीं है, देखो, है ना? बता रहा है कि स्टार्टिंग सर्विसेज एंड ऑल, ये बता रहा है। तो बिग आईपी 2 पे भी ऐसे ही मिलने वाला है आपको। तो बिग आईपी 1 और बिग आईपी 2, दो दो बिग आईपीज हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन सर्विसेज स्टार्ट होंगी दोनों की, तो आपको दोनों का गुई एक्सेस मिल जाएगा। जब तक एप्लीकेशन सर्विसेज स्टार्ट नहीं होगी, तब तक आपको गुई एक्सेस आपके F5 लोड बैलेंसर्स का नहीं मिलेगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। मैं एक बार पट्टी से SSH लेकर के देख लेता हूँ इन बिग आईपीस का।
जैसे 46 का लेके देख लेता हूँ, 45 तो ठीक है, वो तो दिखा ही रहा है मेरे को। एक बार 46 का लेकर के देख लेते हैं। CLI एक्सेस तो मिल जाएगा मेरे को। मिल गया ना। अभी इनऑपरेटिव है, और यही रीजन है कि इनऑपरेटिव की वजह से ही, इनऑपरेटिव मोड की वजह से ही ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। एक सेकंड होल्ड करना प्लीज। यू सी, now it says peer time out of sync disconnected, but that's okay. I mean, at least I should have the GUI access to it. ठीक है, ये है, लॉगिन भी करके देख सकते हो वैसे। दैट शुड नॉट बी एन इश्यू। ये देखो अभी आपको एक्टिव स्टैंड बाई में ही मिलने वाला है, बट डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, दैट्स ओके। ये हो सकता है एनटीपी का कुछ इश्यू हो, इस वजह से आपको ऑफलाइन भी, ओके ऑफलाइन है अभी, इस वजह से ये आपको डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। जैसे ऑनलाइन आएगा तो ये ऑब्वियसली एक्टिव मेरा LTM 1 ही रहने वाला है, LTM 2 मेरा स्टैंड बाई रहेगा, बट क्योंकि ये ऑफलाइन है अभी इसका स्टेट, तो इसलिए इट्स नॉट वर्किंग। आफ्टर सम टाइम इट शुड गेट फिक्स्ड ऑटोमेटिकली, बट मुझे वो नहीं कराना था, मुझे कराना भी नहीं LTM की चीजें आप लोगों को, राइट। मैं अब आपको रीसेट करके दिखाऊंगा बॉक्स को। जैसे BIG IP2 है, मैंने इसका CLI एक्सेस लिया हुआ है, यू नो इट वेरी वेल। यहाँ से ये CLI इसका एक्सेस लिया हुआ है, अभी इन ऑपरेटिव आ रहा है, दैट्स ओके, छोड़ो उसको, हमें कोई लेना देना नहीं है। दिस इज कॉल्ड बैश मोड, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, बैश मोड बोलते हैं। अब TMSH में आप टीमोस में चले जाएंगे, TMSH कमांड से आप टीमोस में जाएंगे, एंड देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन रीसेट द एंटायर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कमांड होती है लोड। अब देखना इसको सिस्टम डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे लेकर के जाओ, लोड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट। तो लोड सिस कॉन्फ़िग डिफॉल्ट, ये कमांड आप डालोगे यहाँ पे। इससे आप फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड में जाते हो, क्योंकि एक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है यहाँ पे पहले से, आप वो लोड कर रहे हैं यहाँ पे। यू गेट माई पॉइंट ग्लेन एंड रोहित एंड श्रीनिवास, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी पुट एनी BIG IP इनटू फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड, करेक्ट। बट इसमें ध्यान रखना कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये डिलीट नहीं करेगा या चेंज नहीं करेगा। जैसे मैनेजमेंट इंटरफेस की सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशन, आपने अगर मैनेजमेंट इंटरफेस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन की हुई है ना पहले से, तो उसको भले ही आपने ये फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड में डाला है, स्टिल all your management interface configuration will remain as it is. It is not going to affect your management interface configuration. That's point number 1. इसमें अब जो point number 2 है, वो ये है कि जो लाइसेंस है आपका, that would also remain same. मतलब अगर आपने लाइसेंस इंस्टॉल करके रखा है ना, तो वो एज इट इज रहने वाला है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ शो कमॉन सिस लाइसेंस, ठीक है, तो ये एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। इसको इसको डिलीट नहीं करेगा ये। तो अब अगर मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ लोड सिस कॉन्फ़िग डिफॉल्ट, जो मैं कर रहा हूँ, अब ये देखो ये बोल रहा है कि आर यू श्योर, तो आपको यस करना है। आप देखोगे कि आइडियली अगर आप किसी फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड में डालते हो किसी दूसरे डब्बे को या किसी दूसरे वेंडर के डब्बे को, तो आपका SSH एक्सेस चला जाएगा। मैंने SSH के थ्रू एक्सेस किया हुआ है यूजिंग मैनेजमेंट इंटरफेस, बट इसका मैनेजमेंट एक्सेस आपके पास रहेगा। SSH के थ्रू आप इसको एक्सेस करते रहोगे, देखो गया नहीं है एक्सेस और जाना भी नहीं है, समझ रहे हैं आप। सो दिस इज हाउ यू पुट your box into default configuration or factory default mode. बट ये हमें ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी डब्बे को फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड में डालते हो, तो ये बॉक्स फिर इट डज नॉट लूज इट्स मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज इट डज नॉट लूज इट्स लाइसेंस। सो इट वुड रिमेन इन विद इन योर BIG IP। इनफैक्ट दिखा भी दिया इसने एक्सपायरिंग पासवर्ड्स एंड ऑल, बट ठीक है, मेरे पास तो एक्सेस ऑलरेडी है ना। पासवर्ड एक्सपायर कर देता है ना ये डिफॉल्ट स्टेट में। जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम जब हम बूट कराते हैं किसी BIG IP को, मान के चलो आपके पास एक नया BIG IP आया, आपने उसको बूट कराया, तो बाय डिफॉल्ट जो रूट क्रेडेंशियल्स होते हैं वो रूट डिफॉल्ट रहते हैं, रूट ROOT, एंड देन पासवर्ड रहता है डिफॉल्ट DEFAULT, और एडमिन का रहता है एडमिन एडमिन, राइट। पर देन वो पासवर्ड एक्सपायर्ड रहते हैं पहले से, और आपको वो चेंज करने पड़ते हैं फिर। अब क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लॉग्ड इन हूं यहाँ पे, इस केस में मैंने तो ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है ना यहाँ पे, अभी फिर से इन ऑपरेटिव आ रहा है, बट दैट्स ओके। अभी सूनर लेटर, मतलब थोड़े टाइम में ये एक्टिव हो जाएगा। बट अभी अब इस बॉक्स के ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने लॉग आउट भी कर दिया होगा मुझे,
हाँ, अभी तो ये इट इज वेटिंग फॉर एस्टेब्लिशिंग दैट कनेक्शन विद द डिवाइस। बट दिस इज हाउ यू रीसेट द बॉक्स, राइट? अब क्योंकि रीसेट किया तो अब सेटअप करना भी सीखेंगे, क्योंकि वो सेटिंग अप बिग आईपी है ना आपके यहाँ टॉपिक, इसलिए मैंने ये कराया। तो सेटिंग अप बिग आईपी इज ए टॉपिक ऑफ डीएनएस, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ आपको। आने दो इसको, एक बार एक्टिव होने दो, एंड देन आई विल स्टार्ट द इनिशियल सेटअप यूजिंग गुई। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, ये बताओ आप जिन लोगों को, क्योंकि जो डीएनएस कर रहे हैं उनको एलटीएम तो आता है, ऐसा तो मैं एज्यूम कर ही सकता हूँ ना, और जिन्होंने यहीं यहीं पे एलटीएम कवर किया उनको तो मतलब वो भी, दे शुड बी एबल टू गिव द आंसर। डिफॉल्ट आईपी एड्रेस क्या होता है किसी बिग आईपी का? हाँ जी, Last octet will be dot 245. एग्जैक्टली, 192.168.1.245, right? So that's the default IP address of any big IP that you get on it, right? जब आप एक नया बिग आईपी परचेज करते हो तो डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है वो मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर, बट एट सेम टाइम योर मैनेजमेंट इंटरफेस इज प्री कॉन्फ़िगर्ड टू ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस फ्रॉम द डीएचसीपी सर्वर एज वेल, okay? So it can also obtain an IP address from the DSCP if there is a DSCP pool configured in your VLAN. Management VLAN में if DSCP services are running, then your big IP can also obtain an IP address from the DSCP server. Console board भी होता है आपके big IP पे, तो console से आप you can also take the first time console, तो वो भी आप ले सकते हो. So that feature is also available. अगर आप फिजिकल बॉक्सेस की बात करोगे, अब कभी कभी जो मैनेजमेंट आईपी है ना वो 192.168.1.244 या 246, आई कैंट रियली रिकॉल इट, या तो 244 होता है, 246 ये होता है आपके चेसीज के केस में, आपके पास अगर चेसी है उस केस पे। अच्छा, अभी ये कह रहा है रिबूट इज रिक्वायर्ड, तो मैं इसको एक बार ना रिबूट कर देता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको खाली शट करके ऐसे स्टॉप किया और फिर इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था चेसी का जो डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है, चेसी का डिफॉल्ट आईपी एड्रेस वो बिग आईपी जो अप्लायंसेस आते हैं उनसे अलग होता है। जैसे अप्लायंसेस में तो 1.245 हो गया, तो जो चेसी का डिफॉल्ट आईपी एड्रेस रहेगा वो या तो 1.244 होता है या फिर 246 होता है। आई कैंट रियली रिकॉल इट, बट यही कुछ होता है, आइदर 244 और 246, वो आपको देखना पड़ेगा एक बार। बट चेसी का भी डिफॉल्ट आईपी एड्रेस आता है, सो दैट्स समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर, क्योंकि कई बार ये ऐसे फालतू के क्वेश्चंस मैं बोलता हूं बट ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। वैसे इनका कोई ये बेसलेस क्वेश्चंस हैं, रीजन क्योंकि ऐसा बहुत रेयरली होगा कि आप डिफॉल्ट आईपीस के साथ उनको एक्सेस करोगे। हाँ, कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं करते हैं। कंसोल से एक्सेस करके मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर करके देन वी टेक द मैनेजमेंट एक्सेस ऑफ द बॉक्सेस, दिस इज हाउ वी डू, ठीक है? बट दैट्स ओके। अभी मैंने इसको रिबूट कर दिया है इस बिग आईपी 2 को। तो जो यहाँ पे ये मैंने फेल ओवर कॉन्फ़िगर करके रखा था ना आपका, सिंक फेल ओवर, सिंक प्लस फेल ओवर दोनों, अगर आप देखोगे यहाँ पे LTM1 की कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये डिवाइस ग्रुप और डिवाइस ग्रुप में जाओगे तो यहाँ पे दो दो डिवाइसेस थी मेरी। तो यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक विद इंक्रीमेंटल सिंक और सिंक फेल ओवर था, ये देखोगे ना, सिंक फेल ओवर। तो सिंक फेल ओवर कॉन्फ़िगर नहीं करोगे आप डीएनएस के केस में, डीएनएस के केस में आप सिर्फ सिंक ओनली करोगे, सिर्फ सिंक, नॉट सिंक फेल ओवर, ओके? वो आप तब करोगे जब आप बिग आईपी डीएनएस पे मैं आपको कराऊंगा, तो वो टाइम पे कराऊंगा। अभी तो कह रहा है कि स्टार्टिंग वेब सर्वर, क्योंकि रिबूट किया ना मैंने इसको। बट हाँ, ये देखो CLI से एक्सेस मिल गया मेरे को, कंसोल एक्सेस है ये SSH एक्सेस नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट रियली श्योर दैट व्हाट आईपी एड्रेस इट हैज पिक्ड अप। वैसे मैनेजमेंट का तो मुझे पता ही है क्योंकि डिलीट नहीं हुआ अभी, तो फिलहाल आई एम अवेयर ऑफ। बट अगर एक नया बॉक्स होगा तो यू डोंट नो दैट व्हाट मैनेजमेंट आईपी एड्रेस इट हैज पिक्ड अप, राइट? देख सकते हो, निकाल सकते हो काफी चीजें, स्विच की मैक एड्रेस टेबल निकालो, वहां से मैक निकालो अपने F5 का वो इंटरफेस का जिसपे F5 कनेक्टेड है, फिर उस मैक एड्रेस के अगेंस्ट डीएचसीपी पूल को सर्च करो, निकाल सकते हो। देयर आर मेनी वेज, राइट, to identify in case I mean to identify the IP addresses। फिर उस विलेन में आप कई बार ब्रॉडकास्ट को पिंग करा के रिप्लाई देख सकते हो किस किस से आया वो। देर आई मीन यू हैव गॉट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, बट क्यों करें ऐसा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाए इसको हम? सिंपलिस्टिक वे में इसको आप सिंपली कंसोल से एक्सेस लोगे फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ये कंसोल एक्सेस है इसका। तो कंसोल एक्सेस में बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम रहेगा दैट इज रूट, डिफॉल्ट पासवर्ड जो रहेगा दैट इज डिफॉल्ट, DEFAULT, वो डालोगे। क्या बोल रहा है ये सर? ये फर्स्ट टाइम सेटअप है, इसने बोला कि बॉस आपका पासवर्ड जो है वो चेंज होना चाहिए इमीडिएटली। तो अभी जो करंट पासवर्ड है वो डालो, DEFAULT। फिर बोल रहा है कि नया पासवर्ड डालिए, तो मैं नया पासवर्ड डाल रहा हूं अब। सो आई एम टाइपिंग नाउ, रीटाइप द न्यू पासवर्ड।
वो किया मैंने, अब पासवर्ड रीसेट हो जाना चाहिए, हो गया। बट मैंने तो सिर्फ रूट के लिए किया था ना यहाँ पे, क्योंकि CLI में जब आप लॉगिन करोगे तो रूट से करोगे, राइट। बट यहाँ पे अगर आप ये इसका मैसेज रीड करोगे जो इसने दिया हमें CLI में, रीड करोगे एक बार, क्या बोल रहा है ये? इट इज पार्ट ऑफ द इनिशियल सेटअप ऑफ द डिवाइस, इनिशियल सेटअप ऑफ द बिग IP, राइट। समझ आया क्या बोला इसने? It says कि whatever password you have set on the root for the root user ID, the same password has been configured for, बोलिए, the same password has been configured for admin. yes, but it is marked as an expired। तो एक तो अब एडमिन का आपका डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं रह गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एडमिन एडमिन होता है, यूजर ID पासवर्ड, राइट, तो वो नहीं है। अब जो पासवर्ड आपका रूट का है वही एडमिन का हो चुका है, इट हैज डन दैट, राइट, बट एक्सपायर्ड मार्क कर दिया है इसने। अब सिंस इट हैज मार्क दैट पासवर्ड एज एन एक्सपायर्ड, तो आप जब फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे ना GUI में, तो इट विल आस्क यू टू रीसेट योर पासवर्ड। चलते हैं एक बार GUI में। तो GUI में जब आप लॉग इन करोगे फर्स्ट टाइम, तो ये बोलेगा कि बॉस ये पासवर्ड तो एक्सपायर हो चुका है, तो फिर मैं उसको रीसेट कर दूंगा। देखो अब कर रहा हूं रीसेट, करंट डाला और न्यू पासवर्ड डाल के मैंने रीसेट कर दिया इसको। अब लॉग इन करो, हो गया लॉग इन। So this is the first time, that since we log in onto this big IP post reset, तो post reset we are logging in very first time। तो जब आप first time किसी big IP पे log in करते हो, तो उसका host name होता है big IP, आप देख सकते हो host name भी big IP है उसका। और मैनेजमेंट IP तो खैर इस केस में चेंज हुआ नहीं था, बिकॉज वी केप्ट इट कॉमन। और जब हमने रीसेट किया तो उस टाइम पे मैंने बताया भी था आपको कि इट डज नॉट अफेक्ट योर मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट वाज सेम। बट हाँ, यहाँ पे सेटअप यूटिलिटी में अब आप आ गए हैं GUI में। तो आप देखोगे कि जब तक आप सेटअप यूटिलिटी कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आपका LTM मॉड्यूल भी प्रोविजन नहीं हुआ है यहाँ पे। तो क्या कुछ प्रोविजन है बाय डिफॉल्ट LTM या DNS, कुछ ऐसा? नथिंग है ना, कुछ भी नहीं है ना। तो आपको ये सेटअप यूटिलिटी कंप्लीट करना होगा, तो आप नेक्स्ट करो। अगर इसमें लाइसेंस नहीं होता ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे लाइसेंस इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। फिलहाल है लाइसेंस, तो दैट्स ओके, तो आप नेक्स्ट कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूं यहाँ पे। अब ये जाएगा रिसोर्स प्रोविजनिंग में, और यहां पे आप बताते हो कि इसको आप ऐसे LTM यूज करोगे या फिर ऐसे DNS यूज करोगे, या फिर ऐसे दोनों LTM भी और DNS भी आप कर सकते हो। जैसे LTM तो बाय डिफॉल्ट प्रोविजन है, नीचे देखोगे तो GTM आ जाएगा, ग्लोबल ट्रैफिक। ये DNS कॉमा इसमें दिया हुआ है ना, देखो ब्रैकेट्स के अंदर DNS डाला हुआ है, तो आप इसको चेक मार्क करो, क्योंकि लाइसेंस तो है, देखो सामने दिखा रहा है कि लाइसेंस्ड है। और नॉमिनल पे ही रहने दो, तो मैंने LTM प्लस DNS दोनों को सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब इसके साथ में ये AVR का भी बताया था मैंने आपको, याद है? तो ये प्रोविजनिंग यहाँ से होगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे DNS को कर देते हो डेडिकेटेड, तो LTM हट जाएगा, ये देखो। तो जैसे आप DNS को डेडिकेटेड करोगे तो LTM हट जाएगा। अब DNS डेडिकेटेड का मीनिंग ये हुआ कि इस बिग IP के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब के सब इस DNS को असाइन हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, इस बिग IP के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी DNS मॉड्यूल को असाइन हो जाएंगे, एलोकेट हो जाएंगे। बाकी ठीक है, LTM इसको सेलेक्ट करके रखो नॉमिनल एंड देन क्लिक नेक्स्ट से ओके। जब आप रीप्रोविजनिंग करते हो, मतलब प्रोविजनिंग में चेंजेस करते हो, तो बिग IP की जो सर्विसेज हैं वो रीस्टार्ट होती हैं, ये ध्यान रखना आप। तो ये जो प्रोविजनिंग आप रीप्रोविजनिंग करते हो ना, या चेंजेस करते हो प्रोविजनिंग के अंदर, तो थोड़ा ये ध्यान से करना है प्रोडक्शन नेटवर्क में, क्योंकि आपकी सर्विसेज रीस्टार्ट होती हैं। Sir, I have one doubt about services. Yes. For example, I have FI LTM running one, and I want to provision or I want to add DNS module in that. So while doing that, it will do reprovisioning, right? Again, between Correct. LTM and Yes, GTM. of course. So in that case, the LTM services will also be restarted? Yes, of course. Okay. हाँ, आपका उसमें आउटेज आएगा। Fine. अभी ये हो गया हमारा प्रोविजनिंग वाला कंप्लीट। अब ये पूछ रहा है डिवाइस सर्टिफिकेट यहाँ पे। सो इफ यू वांट टू चेंज द डिवाइस सर्टिफिकेट, यू चेंज इट। इफ यू डोंट वांट टू चेंज द डिवाइस सर्टिफिकेट, keep it same. By default, it is using self-signed certificate. You can see that issuer is self, correct? Now say next. Now it will ask for the host name, and so you can put the host name and everything. So IP, you can keep it same.
For now, I'm keeping it ltm2imerita.com. That's the, now remember that whenever you are putting the host name, right, it has to be in the form of FQDN, right? Fully qualified domain name. Now remember that whether you are putting the host name for the big IP DNS or big IP LTM, because big IP is big IP, whether you are using it as a LTM or DNS, and this whole configuration that currently we are doing, it is applicable only for the big IP, not for LTM or DNS. So the host name concept, whether you are putting it on LTM or DNS, is going to be same, right? Now password for the root is, I'm just putting that up. And then say next. So I put on the password and, you know, the management IPs and everything. And then say finished. Now you should see LTM as well as DNS tabs at your left side. So you have LTM. Under LTM, you can make all the configurations related to LTM only. But then under DNS, now you can make all these configurations. So even earlier, when we never provisioned the DNS, still I was getting this option. But if you expand the DNS, you would not get all these options like GSLB and everything, right? You would not get those options available. So DNS will be visible there, but you can't really make configuration under that DNS options unless you provision the DNS module. So this time we have provisioned the DNS module. हमने provision किया, अगर आपको याद हो LTM के साथ साथ, और यही reason है कि मैं यहाँ पे ये GSLB और ये सब चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्पेशली ये GSLB, क्योंकि यही इसी में इंटेलिजेंट DNS रेजोल्यूशन होता है अंडर GSLB. तो यही सारी चीजें, डिलीवरी एक आपके पास ऑप्शन है, GSLB एक आपके पास ऑप्शन है, जोन्स है आपके पास, कैशिंग है, और फिर उसके बाद सेटिंग्स है आपके बिग आईपी DNS को लेकर के. अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट डज नॉट टेक दैट मच लॉन्ग टाइम टू कवर दिस DNS मॉड्यूल, क्योंकि उतने ऑप्शंस नहीं है. जैसे LTM में जाओगे तो यू हैव गॉट लॉट मेनी ऑप्शंस, राइट? देन वर्चुअल सर्वर, देन यू हैव गॉट पूल्स, नोड्स, एंड यू हैव गॉट सो मेनी प्रोफाइल्स. ऑल्दो वो DNS में भी है, बट अब क्योंकि आपको पता है कि यार हाँ ये जैसे पूल हो गया, तो आपको पता है पूल क्या होता है, अभी आपको पता है रूल्स क्या होते हैं यहाँ पे, ठीक है? ऐसे ही अगर आप डिलीवरी में जाओगे तो यहाँ पे प्रोफाइल्स आपको की प्रोफाइल्स क्या होती हैं, और उसके बाद ये मॉनिटर्स. अच्छा, पूल यहाँ पे दो पूल होते हैं, एक तो डिलीवरी के अंदर होते हैं और एक GSLB. तो आप देखोगे कि वी हैव गॉट सम ऑब्जेक्ट्स that we can create under delivery, and also there are some objects that we can create under GSLB. अब going forward मैं आपको explain करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा ये चीजें कि GSLB में क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप, और आप अंडर डिलीवरी क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि डिलीवरी के अंदर भी कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं और कुछ अंडर GSLB आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे होते हैं. एनी क्वेश्चंस? इट्स क्लियर. नाइस. तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कवर करने वाले हो, और इस तरीके से आप इनिशियल सेटअप कंप्लीट करोगे अपना. ये भी हो गया आपका इनिशियल सेटअप. आपको पता है कि बेसिक सेटअप कैसे कंप्लीट करना है, बट आपको ये नहीं पता कि नेटवर्किंग कैसे करनी है. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, आप चाहे आप नेटवर्किंग बिग आईपी LTM पे करो या बिग आईपी DNS पे करो, नेटवर्किंग वो सेम ही रहेगी. क्रिएटिंग VLANs, पुटिंग IPs ऑनटू VLANs, है ना, जो सेल्फ IP था वो सब सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा, या राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे LTM 1 पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ LTM चला हुआ है, ये DNS के ऑप्शंस आपको नहीं दिखेंगे. देखो है क्या GSLB इधर, और डिलीवरी में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक पड़ा हुआ है. कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि DNS प्रोविजन नहीं किया आपने यहाँ पे. बट अगर नेटवर्क टैब देखोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, और अगर आप अपने DNS पे जाओगे तो यहाँ पे भी नेटवर्क टैब ही मिलेगा आपको, और वो सेम ऑप्शंस हैं आपके पास. मतलब चाहे आप DNS बिग आईपी DNS के लिए नेटवर्किंग करा रहे हैं या फिर बिग आईपी LTM के लिए, दैट has got similar things, that has got similar features, that has got same options. समझ आया आप लोगों को कि नहीं आया? Yes, understood. Great. तो ये सेम रहने वाला है. तो अभी जैसे DNS पे आपको ये इंटरफेस लिस्ट देखनी है, तो आप ऐसे देखोगे, ये मेरा DNS ही है बेसिकली. अभी LTM को छोड़ दो, ठीक है, ऐसा मानो कि DNS है. एंड देन यू हैव गॉट द VLANs, राइट? तो VLAN क्रिएट कर सकते हो. तो वही तरीका है जो हमने LTM पे यूज किया था कि नेम दे दो. यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया इंटरनल VLAN, टैग हो गया मेरा 20, इंटरफेस है मेरा 1.2, अनटैग्ड रखेंगे इसको हम. ऐड कराओ, रिपीट कर सकते हो इफ यू वांट टू क्रिएट वन मोर VLAN. जैसे एक्सटर्नल VLAN बोला मैंने, VLAN 10 हो गई है, और ये 1.1 अनटैग्ड, और फिर फिनिश कर दो. तो ऐसे VLAN क्रिएट कर सकते हैं आप, सिमिलर टू बिफोर.
फिर उसके बाद सेल्फ आईपीज में जाकर के सेल्फ आईपी आप कॉन्फ़िगर करोगे, तो वो तरीका वही है जो एलटीएम में आपने यूज किया था। तो ये सब तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। फिर राउट में जाकर के आप स्टैटिक राउट ऐड कराओगे। फिर उसके अलावा भी मैंने आपको चीजें बताई थी, इफ यू रिमेंबर दैट, डायनामिक राउटिंग, पार्टीशनिंग। पार्टीशन के अलावा अगर आप देखोगे कि अगर आपको मल्टीपल राउटिंग टेबल्स अगर आपको रखनी है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है आपका एक राउट डोमेन्स। तो आप राउट डोमेन्स क्रिएट कर सकते हो, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एलटीएम में। तो वो सारी चीजें यहाँ डीएनएस में भी सेम ही रहती हैं, चाहे वो आपको एक नया राउट डोमेन क्रिएट करना हो, या स्टैटिक राउट सेट करने हो, या आपको इनफैक्ट पैकेट फिल्टरिंग करानी हो नेटवर्क लेवल पे, इंटरफेस लेवल पे पैकेट फिल्टरिंग, लाइक जैसे हमारे पास सिस्को में एसीएल्स होती हैं, वैसे आप यहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे भी सेम सिमिलर चीजें ही रहने वाली हैं। तो ये सब है। तो आपको देखना, जिन्होंने एलटीएम सीरियसली ठीक से किया हुआ है ना, तो उनके लिए जो जीटीएम है, इट वुड बी सो इजी, लाइक ब्रेड एंड बटर की तरह रहने वाला है ये। बस आपको डीएनएस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनएस सर्विस क्या काम करती है, उसका रोल क्या होता है प्रोडक्शन में, राइट? दैट्स ऑल यू नीड टू नो ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड सो फार। उसके बाद तो देखना, ऑप्शंस तो वैसे ही हैं जैसे आपने वर्चुअल सर्वर कॉन्फ़िगर किया, पूल कॉन्फ़िगर किया, वैसी वैसी चीजें हैं। बस आपको अब यहाँ पे उनका मीनिंग डिफरेंट होगा, राइट? उनका मीनिंग डिफरेंट रहने वाला है, दैट्स ऑल। बताइए, एनी क्वेश्चंस सो फार फ्रॉम एनीवन? So far, good, sir. नाइस, ठीक है, आई कीप इट लिटिल शॉर्ट फॉर टुडे। कल मैं आपको डीएनएस की डिप्लॉयमेंट सीधे डीएनएस एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो पढ़ के आना थोड़ा सा आप लोग प्लीज। आप लोगों से सभी से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो मैं बता रहा था आपको, जो जैसे रूट डोमेन हो गया, रूट डोमेन पढ़ के आना क्या होता है। फिर थोड़ा सा टॉप लेवल डोमेन क्या होते हैं, सब डोमेन्स क्या होते हैं, वो थोड़ा सा देख करके आना आप लोग प्लीज पहले से, जिससे कि जब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा उन चीजों को, तो आपको थोड़ा आइडिया रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे। राइट? वैसे मैं अपना ट्राई करूंगा पूरा 100% कि यू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, बट स्टिल थोड़ा सा देख करके आना पहले से एडवांस में, सो दैट यू फील कंफर्टेबल व्हाइल आई एम गिविंग माय ओन एक्सप्लेनेशन। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कल ही मैं स्टार्ट करूंगा आपके डीएनएस की डिप्लॉयमेंट। मतलब ठीक है, पहले तो मैं आपको वो थियोरी जो है थोड़ा सा वो कवर करके दूंगा, उसके बाद छोटी छोटी चीजें डीएनएस डीएनएस की तो डिप्लॉय करके दूंगा ना आपको। नॉर्मल एक डीएनएस को, एक एफ डीएनएस को इन्वॉल्व कर लेंगे हम कल, और फिर डीएनएस रेजोल्यूशन करा के देखेंगे, और वो उस केस में आपका जो F5 डीएनएस होगा वो एज ए प्रॉक्सी काम कर रहा होगा, दैट्स ऑल। उसके बाद फिर वो बताऊंगा आपको कि हाँ किस तरीके से कैशिंग वगैरह आप इनेबल कर सकते हो, वो सारी चीजें। बट आज के लिए इतना सफिशियंट है जो बताया मैंने, जैसे बिग आईपी की जो प्रोविजनिंग है वो बता दिया, उसके पहले कुछ एलटीएम और डीएनएस को लेकर के डिस्कस किया आप लोगों के साथ में, राइट? कंटेंट क्या क्या करने वाले हो वो डिस्कस किया आपसे। सो दैट्स व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार very well, that how to do that. So load sys config default, right? Yes. So except management interface, everything management and license, right? Everything will get resetted. So your configuration will set back to the factory default. So that's okay. I mean, that's what I wanted. बट यहाँ अगर आप देखोगे, मैंने बताया था आज आप लोगों को कि फर्स्ट आई एम गोइंग टू कवर द डीएनएस, कि व्हाट इज डीएनएस। और मैंने कल आपको बोला भी था कि यू गाइस गो बैक एंड देन मेक श्योर कि कल क्लास अटेंड करने से पहले थोड़ा सा डीएनएस को देख करके आना, राइट? वो चीजों के लिए मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है? अच्छा, इसमें जो मैं आपको ये ये जो बुक आपको अपलोड होगी आपके पोर्टल पे, राइट? तो उसमें पहले वही प्रॉक्सी से स्टार्ट किया हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एलटीएम सभी लोगों ने किया हुआ है पहले से, तो यू शुड बी ओके विद दैट, कि प्रॉक्सी क्यों बोलते हैं, राइट? और टीमोस क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, है ना? और बाकी इनिशियल सेटअप तो मैंने कल कराया था, आज फिर से करोगे, सो यू शुड नॉट बी हैविंग एनी इश्यूज विद दैट, ठीक है? तो इनिशियल सेटअप तो आज फिर से करोगे आप, सो दैट्स ओके। उसके बाद बात कर रहे थे कि डीएनएस, राइट? कि व्हाट इज डीएनएस, तो समझ आया कुछ? कल आपने वापस जाके घर पे थोड़ा सा रीड किया होगा डीएनएस को, कि डीएनएस कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है? उसकी जरूरत क्यों पड़ी, राइट? थोड़ा आइडिया लगा आप लोगों को कि नहीं? Yes, sir. Okay. I'm hoping everybody tried to do so, right? I mean, सभी ने ट्राई किया होगा अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा इसको रीड करने का। तो अगर डीएनएस की बात करोगे, ऑब्वियसली
कल भी बताया था मैंने आप लोगों को कि डीएनएस का जो मेनली वर्क होता है, या जो इसका इसका जो रोल होता है वो होता है नेम्स को आईपी में ट्रांसलेट करना। लाइक whenever we are trying to access anything, any object over an internet, right? तो आइडियली यू एक्सेस एवरीथिंग, ऑल योर एप्लीकेशंस बाय देयर नेम्स, है ना। अभी ऐसा नहीं होता कि आप आईपी से एक्सेस करते हो, मतलब कर सकते हो, टेक्निकली इट इज पॉसिबल टू एक्सेस ऑल ऑफ योर एप्लीकेशन यूजिंग देयर आईपीस, है ना। पॉइंट ये है कि कितने आईपीस को आप याद रखोगे। फेसबुक को अपना आईपी बताना पड़ेगा, अच्छा ये मेरा आईपी है, राइट, या गूगल को अपना आईपी बताना पड़ेगा, एंड देन आप डायरेक्टली आईपी की हेल्प से वो एप्लीकेशंस को एक्सेस करोगे। मतलब टेक्निकली इट इज पॉसिबल, बट फिजिबल नहीं है। फिजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कीप नंबर्स रिमेम्बर, राइट। मतलब नंबर्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर ए ह्यूमन बीइंग, राइट। बट नेम्स को हम इजीली याद रख सकते हैं, राइट। वो एंट्रीज हमारे ब्रेन में इजीली स्टक हो जाती हैं, करेक्ट। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं मैक्सिमम केसेस में, सर्वर्स का भी आप देख लो, सर्वर्स को एक्सेस करते हैं आइडियली। जैसे आप आरडीपी वगैरह लेते हो प्रोडक्शन में, आप देखोगे कि आप उनका भी आरडीपी नेम्स के थ्रू करते हो, नेम यूज करके करते हो, बिकॉज सर्वर्स को भी एक्सेस करना यूजिंग देयर नेम्स सो इजी। बट अगर आप आईपी से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको पता होगा डीएनएस, फिर आपको चाहिए कुछ तो चाहिए जो नेम को आईपी में रिजॉल्व करे। तो एक तो होस्ट फाइल आती है कि आप होस्ट फाइल अपडेट कर सकते हो। होस्ट फाइल में एंट्रीज क्रिएट करनी होती हैं फॉर ईच एंड एवरी नेम एंड आईपी एड्रेस। बट होस्ट फाइल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये हर मशीन पे आपको ऐसा करना पड़ेगा, कोई सेंट्रलाइज्ड सोल्यूशन नहीं है वो। ये जो सोल्यूशन है होस्ट फाइल वाला, वो हर मशीन पे आप मैनुअली डालोगे, बट वो उतना नहीं है कि मतलब एक स्केलेबल सोल्यूशन नहीं है वो, राइट। तो इसलिए फिर इस तरह का, या फिर डीएनएस इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो डीएनएस बेसिकली एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है, राइट। और उस सर्वर के ऊपर आप एंट्रीज क्रिएट करके रखते हो कि इस नेम के लिए ये आईपी एड्रेस होगा, इस नेम के लिए ये आईपी एड्रेस होगा। ये कहाँ पे क्रिएट करके रखते हो आप? डीएनएस सर्वर्स पे। और फिर जब एक क्लाइंट को एक नेम को आईपी में ट्रांसलेट करना होता है, वो डीएनएस सर्वर को एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा कि आई नीड एन आईपी एड्रेस फॉर दिस नेम। और फिर डीएनएस सर्वर पे वो रिक्वेस्ट आएगी, डीएनएस सर्वर अपने डेटाबेस को देखेगा और डेटाबेस से उस नेम के अगेंस्ट जो आईपी एड्रेस होगा उसको निकाल के आपको प्रोवाइड करेगा। दिस इज हाउ नेम्स आर ट्रांसलेटेड इनटू एन आईपी एड्रेस यूजिंग डीएनएस। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड सोल्यूशन है। जैसे होस्ट फाइल तो हर मशीन की अपनी अपनी होती है, जैसे आप भी देखोगे आपके लैपटॉप में भी होस्ट फाइल होती है, F5 के ऊपर भी अपनी होस्ट फाइल होती है, आप उसमें भी एंट्रीज क्रिएट कर सकते हो। बट पॉइंट ये है कि जो होस्ट फाइल वाला कॉन्सेप्ट है वो एक लोकल सोल्यूशन है, लोकल टू इंडिविजुअल मशीन्स। तो हर मशीन पे वो होस्ट फाइल को अपडेट करना, मेंटेन करना इज सो डिफिकल्ट, स्केलेबल सोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। इसके लिए फिर डीएनएस ही आया और वही हम यूज करते हैं। तो डीएनएस में बेसिकली अगर आप देखोगे, एक तो होता है रूट डोमेन, जिसको हम डॉट बोलते हैं, ये डॉट रूट डोमेन होता है। और दुनिया में कुछ लोग हैं जिनके पास रूट सर्वर्स को मैनेज करते हैं, जो रूट सर्वर्स को मैनेज करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे रूट सर्वर्स की अगर हम बात करें, तो बेसिकली जो रूट है, रूट इज मैनेज्ड बाय, या रूट जोन की अगर हम बात करें जो डॉट होता है, दिस इज मेनली मैनेज्ड बाय आईना। आईना क्या होता है? इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। आईना वैसे बहुत सारे काम करता है, राइट। जैसे आईपी एड्रेसेस का रिजर्वेशन हो गया, चाहे वो IPv4 है या IPv6 है, तो वो भी कौन करता है? आईना। जो आईना है खाली रूट को ही मैनेज नहीं करता, ध्यान रखना, खाली रूट को ही मैनेज नहीं कर रहा होता है, उसके अलावा जो कुछ टॉप लेवल डोमेन्स है उसको भी मैनेज कर रहा होता है। ध्यान रखना, कुछ टॉप लेवल डोमेन्स को भी मैनेज कर रहा होता है आईना। अब ये आईना है कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूट है, रूट सर्वर जो है, वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? यूएस में। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये रूट डीएनएस सर्वर्स रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, और उनके आईपीज भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, हु आर मैनेजिंग। जैसे नासा इज वन ऑफ देम, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, कॉन्सेंट कम्युनिकेशन, वेरीसाइन, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, यूएस आर्मी। तो इन सभी के पास ये रूट सर्वर्स रखे हुए हैं, एंड दे आर मैनेजिंग दोज रूट सर्वर्स। बेसिकली मतलब मैं आपको एक लिस्ट भी दे सकता हूँ, आईना की वेबसाइट पे आप जाओगे ना तो निकल जाएगा, एक लिंक शेयर करता हूँ मैं आपको चैट में, आप वो ओपन करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। मैंने चैट में डाला है, इनफैक्ट ये मैंने लिंक ओपन भी किया है, देखो।
समझ रहे हैं आप यहाँ पे? ये टोटल आपके 13 इनफैक्ट। तो आप देख सकते हो कि उनके आईपीस क्या हैं, V4 एज वेल एज IPv6। एंड ये आप देख सकते हो उनके IPv6 एड्रेसेस। तो ये आईना की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये जो रूट सर्वर्स हैं बेसिकली, ये दीज आर मैनेजेस बाय ऑल दीज ऑपरेटर्स। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट। सो दैट्स दैट। उसके अलावा अगर आप देखोगे, रूट के बाद फिर आ जाता है आपका टॉप लेवल डोमेन। जैसे अगर आप देखोगे, या इसको आप सेकंड लेवल डोमेन भी बोलते हो, या टॉप लेवल डोमेन, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। जैसे .com, .edu, .net, .org, .co, तो इनको टॉप लेवल डोमेन्स बोलते हैं, TLDs। फिर आपके आ जाते हैं सब डोमेन्स, जैसे कि अगर आप बात करोगे fi.com, cisco.com, oracle.com, imerita.com, तो इन सबको क्या बोलते हैं हम? सब डोमेन्स। क्या बोलते हैं इनको हम? सब डोमेन। और सब डोमेन के मल्टीपल लेवल सपोर्टेड है। जैसे F5 के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, टैग, HR। टैग के अंदर भी मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, फ्रेड, स्टीव। तो fred.tag.f5.com, ये FQDN बनेगा ना इस यूजर के लिए। ऐसे स्टीव के लिए steve.tag.f5.com, ये FQDN बनेगा। तो कुल मिला के ये है कि जो हमारे सब डोमेन्स होते हैं उसके मल्टीपल लेवल सपोर्टेड होते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी हायरार्की काम करती है। तो सबसे पहले आपका DNS में क्या होता है? रूट सर्वर्स। उसके बाद आ जाते हैं आपके TLDs। और TLDs पे ही आपको क्या रिजर्वेशन कराना पड़ता है? जैसे आप कोई डोमेन परचेज करते हो तो वहां देखना पड़ता है ना आपको TLDs पे अवेलेबल है कि नहीं। अगर किसी ने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, जैसे आइडियली आप GoDaddy पे जाकर के डोमेन परचेज करते हो ना, तो GoDaddy के पास ये डेटाबेस में रहता है कि कौन कौन से डोमेन्स ऑलरेडी लोगों ने परचेज किए हुए हैं। तो जब आप GoDaddy पे जाकर के कोई डोमेन परचेज करोगे, तो वो अपना डेटाबेस देखेगा और बताएगा कि वेदर दिस डोमेन इज अवेलेबल और ऑलरेडी सोल्ड आउट। और उसमें फिर ये भी होता है कि लोग कई बार बेच रहे होते हैं, रीसेल कर रहे होते हैं डोमेन को, पहले ही परचेज करके रख लेते हैं, उसके बाद रीसेल के लिए डाल देते हैं। तो कॉस्ट ज्यादा हो जाती है उसकी फिर। बट कुल मिला के अभी समझ में आया होगा कि जब आप GoDaddy पे जाते हो, GoDaddy पे जा करके डोमेन रिजर्व करने की कोशिश करते हो, तो उसमें आपके पास होता है कि आप किस टाइप की इंडस्ट्री हो, और उस इंडस्ट्री के हिसाब से फिर आप यहाँ पे पिक करते हो .com, .edu, .net या .org। तो ये जो गवर्नमेंट वाला है वो तो गवर्नमेंट के लिए ही रिजर्व्ड है। और EDU मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर एजुकेशन से रिलेटेड, उसका एजुकेशन से रिलेटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर .edu डोमेन आप रखोगे। तो इस तरीके से दिया हुआ है ये। आइडियली .com आप देखोगे, जैसे imerita.com है ना, इस तरीके से। फिर कई बार क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल वेबसाइट्स होती है ना एक सेम नाम से, तो सेम नेम से दो तो हो नहीं सकती, तो उस केस में वो कई बार आप देखोगे .com, .net, .org ऐसे बनवा लेते हैं, जैसे imerita.com, imerita.org, राइट, इस तरीके से। तो ये हायरार्की है इसकी। तो डोमेन्स तो बताया, सबसे पहले रूट डोमेन आएगा, रूट के बाद फिर आएगा आपका यहाँ पे आपके TLDs आ जाएंगे, टॉप लेवल डोमेन, तो .edu, .com, .org। तो TLDs का भी आप देख सकते हो कि हु मैनेजेस देम, है ना। अम, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अगेन जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं वो भी कौन मैनेज करता है? आपका आईना, ठीक है। और टॉप लेवल डोमेन्स का आप ये भी देख सकते हो कि वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ वो रखे हुए हैं, वो भी आप निकाल के रख सकते हो कि जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं, हु ऑल, आई मीन उनके आईपीस क्या है, उनको मैनेज कौन कर रहा है, तो वो लिस्ट आप निकाल सकते हो। वही आईना से निकलेगा टॉप लेवल डोमेन का भी। तो ये चीजें हैं इसमें। तो जैसे मैंने आपको आईना की वेबसाइट पे जाकर के निकाल के दिखाया था ना अभी, वो सारी चीजें आप इस तरीके से रखोगे। अब देखो, रूट हो गया आपका, टॉप लेवल डोमेन्स हो गए, और टॉप लेवल डोमेन्स को पता होता है आपके डोमेन सर्वर का IP एड्रेस। जैसे fi.com का कोई DNS होगा ना, तो fi.com की इंफॉर्मेशन इन TLDs के पास होगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिजर्व, आपको परचेज करना, मैंने बताया ना डोमेन परचेज करना होता है, तो F5 ने fi.com को परचेज किया होगा। जब fi.com को परचेज किया तो वो इंफॉर्मेशन फ्लोट हुई होगी अक्रॉस ऑल योर अवेलेबल, जैसे fi.com है तो .com के पास जो जितने भी .com वाले TLD सर्वर्स हैं, उन सभी के पास ये इंफॉर्मेशन होगी कि यस वी हैव गॉट ए डोमेन कॉल्ड fi.com, और वो fi.com का IP एड्रेस क्या है वो भी इंफॉर्मेशन इस TLD को दी गई होगी। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे F5 का एग्जांपल लिया है और दूसरा ओरेकल का लिया है, सब किस में आते हैं? TLD.com के अंदर। तो अब जब एक DNS क्वेरी जनरेट होती है, क्या होती है?
डीएनएस क्वेरी जनरेट होती है, तो आइडियली जो मशीन होती है आपकी, मतलब जो मतलब अगर आपको ये थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से काम करता है जो डीएनएस रेजोल्यूशन प्रोसेस है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से काम कर रहा होता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, वैसे हमारे यहाँ पे भी है वो, थोड़ा सा आगे जाओगे ना इसमें भी होगा वो, तो मुझे ड्राइंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं उस पे जाऊंगा। हाँ ये रहा देखो। तो आइडियली जो प्रोसेस फॉलो होता है वो ये वाला प्रोसेस फॉलो होता है। तो होता क्या है कि सबसे पहले आप अपनी मशीन से जैसे लैपटॉप से आपने www.fi.com को एक्सेस किया फर्स्ट टाइम, तो आइडियली सबसे पहले डीएनएस रिक्वेस्ट जाती है लोकल डीएनएस के पास। इसको आप रिजॉल्वर भी बोलते हो, क्या बोलते हो? रिजॉल्वर। तो लोकल डीएनएस के पास जाएगी। अब लोकल डीएनएस सबसे पहले चेक करेगा कि इसके कैश वगैरह में या इसके डेटाबेस में कोई एंट्री तो नहीं है www.fi.com की। अगर नहीं है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली अब ये जो लोकल डीएनएस होगा सबसे पहले, मतलब जिसको आप डीएनएस रिजॉल्वर भी बोल सकते हो, तो ये सबसे पहले जाएगा रूट के पास। वैसे फॉरवर्डर लगा दिया अगर आपने पहले से फॉरवर्डर लगा करके रखा है यहाँ पे, तो ये फॉरवर्डर के पास जाएगा। फॉरवर्डर कोई दूसरा डीएनएस हो सकता है यहाँ पे। जैसे अगर आप देखोगे जो होम राउटर्स होते हैं आपके, होम राउटर्स आर कॉन्फ़िगर्ड एज ए डीएनएस सर्वर आपकी मशीन के लिए, लैपटॉप के लिए। आज देख भी लेना आप लोग, जब आप आईपी कॉन्फ़िग करके देखोगे ना आईपी एड्रेस अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में, तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो डीएनएस सर्वर है वो भी डिफॉल्ट गेटवे है। और उस डिफॉल्ट गेटवे मतलब जो मोडेम है, मोडेम को पता होता है कि डीएनएस सर्वर कौन है। तो वहां आईएसपी क्या करता है, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपने डीएनएस सर्वर्स की इंफॉर्मेशन कहाँ पे डाल देता है? मोडेम में। और उसके जो अपने डीएनएस सर्वर्स होते हैं उसको पता होता है कि रूट कहाँ पे है, टॉप लेवल डोमेन, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन रूट कहाँ पे है बेसिकली वो इंफॉर्मेशन होती है। तो आइडियली अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप लोकल डीएनएस पे गए। लोकल डीएनएस के पास या तो आंसर होगा या नहीं होगा। या तो आंसर होगा, डीएनएस क्वेरी का रिस्पॉन्स वो दे देगा, नहीं तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे गए लोकल डीएनएस पे, तो ये लेके जाएगा आप सबसे पहले रूट पे पूछेगा कि डॉट कॉम का आईपी एड्रेस दे दो। वहां पे डॉट कॉम पे जाएगा, डॉट कॉम के पास अब डेटाबेस में होगा fi.com, वहां से fi.com का आईपी एड्रेस मिलेगा, फिर ये fi.com के पास जाएगा और वहां से उसको रियल आईपी एड्रेस मिलेगा और ये क्लाइंट को देगा, और फिर क्लाइंट उस एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट करेगा। समझ आया?